ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ 2 ಬಹುಮತ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ 2ನೇ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. HAL ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ದೇಶದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು, ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಯಕ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಬೆಳಗಾವಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 6 ದಿನಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಜ್ಜನ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದತಿ, ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 8 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. 80 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ 39 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿವಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಗೌರವಶಾಲಿ ಪರಂಪರೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀರರನ್ನು ನೀಡಿದ ನಾಡಿದು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ವೀರಗಾಥೆಯನ್ನು ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನಾಯಕ, ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ, ಸಮಾಧಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ತ್ರಿಪುರಾ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ತ್ರಿಪುರಾ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರಚನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಇದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ಔಷಧಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮೋದಿಜಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಣದುಬ್ಬರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 10ರಿಂದ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಹಾಕುವವರು ಸದಾ ಯಶ ಪಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸಾವಿನ ಮಾತನಾಡುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಕಮಲ ಅರಳುವುದನ್ನು ಸದಾ ನೋಡುವಂತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अध्यक्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री नलिन कुमार जी काकू और आपके कर्नाटक स्टेट के चीफ मिनिस्टर जिनका आपने अभी भाषण सुना, बहुत ही सीधे, सरल, ईमानदार और निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री ऐसे बसवराज जी बोम्मई और हमारे पार्लियामेंट के सारे कामकाज को देखने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री प्रहलाद जी जोशी, कर्नाटक गवर्नमेंट में मिनिस्टर श्री जी पाटिल जी, श्री रवि कुमार जी, श्री गोविंद काजो, श्री लक्ष्मण सवाजी, श्री रमेश जयकोहली, श्री योगेश गिरानी, श्रीमती शशकला जोले, श्री आरती बसवराव, श्री शिवराम धक्कर, श्री अनिल भिनाके,
और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों भाइयों, कर्नाटक दयला जनರಿಗೆ ನನ್ನ नमस्कारಗಳು। बहनों भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों का बहुत ही जोशी के साथ स्वागत किया। लेकिन आप जानते हैं हमारी ये परंपरा स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और यह बेलवागी, यह पब्लिक मीटिंग हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के यह कितनी शुभ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए शुभ है कि आज इस देश में 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं। इलेक्शन रिजल्ट 3 राज्यों के आ रहे हैं, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। आपको जानकर खुशी होगी कि त्रिपुरा और नागालैंड दोनों में भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। और मेघालय में पहले से अधिक हम लोगों की सीटें बढ़ गई। इसलिए एक बार मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय था कि इस अवसर पर मैं आप सबके बीच यहां पर उपस्थित। बहनों भाइयों, इस कर्नाटक प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश में पौराणिकता और आधुनिकता दोनों का एक अनूठा संगम हमको देखने को मिलता है। भगवान बसवेश्वर कर्नाटक के कण कण में विराजते हैं। मैं दुनिया के दूसरे देशों में गया हूं, वहां पर भी भगवान बसवेश्वर की चर्चा होती है। यहां पर एक से एक कवि हुए हैं। आदि कवि पंपा, पोन्ना और रामा की स्मृतियां आज भी यहां पर कायम है। और मैं मानता हूं कि यह धरती अक्का महादेवी की यह धरती है। और महारानी लक्ष्मीबाई से पहले अंग्रेजों को चुनौती देने वाले, यदि कहीं पर यदि कोई पैदा हुआ तो इसी कर्नाटक की धरती पर कोई पैदा हुआ है। और रानी चेन्नम्मा की वीर गाथा केवल कर्नाटक में ही लोग नहीं सुनाते, केवल कर्नाटक में ही लोग नहीं जानते हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, वहां पर रानी चेन्नम्मा के बारे में लोग चर्चा करते हैं। ऐसी यह धरती है। मेरे बहनों भाइयों, उनकी सहयोगी सांगला रायन्ना, मैं मानता हूं हमारा कितना सौभाग्य रहा है आज एक स्थान पर आने के बाद, इस पब्लिक मीटिंग में आने के पहले मुख्यमंत्री बसवराज जी बोम्मई, प्रहलाद जी जोशी और अपने कातिल जी के साथ मैं उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करने के लिए गया और साथ ही साथ उनकी समाधि को भी माल्यार्पण करके मैं मानता हूं कि मैं तो आज धन्य हूं। यह मेरा सौभाग्य है और मैं मानता हूं वीरता और शौर्य की सदैव कर्नाटक की धरती यह साक्षी रही है। मेरे बहनों भाई, मैं लॉन्स नायक हनुमंतप्पा कोडप्पा को मैं भूल नहीं सकता। एक वह सेना के जवान थे जिन्होंने सियाचिन में दुश्मनों से को ऐसी कड़ी टक्कर दी, ऐसी कड़ी टक्कर दी, आज तक उसे लोग याद रखते हैं। इसी धरती से पैदा हुए और इतना ही नहीं, कई ऐसे यहां पर बहादुर पैदा हुए। यहां पर फील्ड मार्शल के.एन. करियप्पा कितने बहादुर थे। यहां की माताओं ने कैसे कैसे लालों को, कैसे बेटों को उन्होंने जन्म दिया। कि करियप्पा का आपके बेटे को पाकिस्तान में बंदी बना लिया था। लोगों ने कहा कि करियप्पा जी कहें तो उनके बेटे को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कर्नाटक की धरती पर पैदा हुए फील्ड मार्शल के.एन. करियप्पा ने कहा कि हमारा केवल एक बेटा नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे युद्धबंदी पाकिस्तान में हैं, वो सभी के सभी हमारे बेटे हैं। जब तक सभी रिहा नहीं होंगे तब तक अपने मैं बेटे की रिहाई की मांग नहीं करूंगा। यह ऐसी धरती है। सूरवीरों को
इस धरती ने जन्म लिया है मेरे बहनों भाई। आज इस बेलगावी की धरती पर यदि हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जहां पर इस स्थान की गौरवशाली परंपरा को याद कर रहे हैं, आप सब तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं पर आज इस बात की आवश्यकता है कि यह विजय संकल्प यात्रा है। तो मेरे बहनों भाइयों, एक बार हाथ उठाकर आप यह संकल्प लीजिए कि हम फिर से कर्नाटक में 2/3 मेजॉरिटी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और नए कर्नाटक का हम निर्माण करेंगे। हाथ उठाकर एक बार सभी संकल्प लीजिए, बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूं इस यात्रा के लिए बहुत सोच समझकर बेलगावी का चयन किया गया है। बेलगावी का चयन शायद इसलिए हमारे कातिल जी ने किया होगा, हमारे बसवराज जी बोम्मई आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने किया होगा, प्रहलाद जी ने किया होगा और हमारे येदियुरप्पा जी ने किया होगा, क्योंकि यह बेलगावी यह कर्नाटक का मस्तक है बहनों भाइयों। यह बेलगावी को सचमुच सबसे ऊंचा स्थान जो मनुष्य के शरीर में होता है मस्तक का शिर, वह है यह बेलगावी। इसलिए मैं यहां पर आप लोगों से अपील करने आया हूं। 2018 में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उस समय पहली बार सरकार बनाई थी। 6 दिन की केवल सरकार येदियुरप्पा जी की बनी थी। उसके बाद 1.5 साल तक यहां पर कुमार स्वामी जी की सरकार रही। 2 वर्षों तक यहां पर येदियुरप्पा जी की सरकार रही, लेकिन अपने स्वास्थ्य कारणों से येदियुरप्पा जी ने यह फैसला किया, लंबे समय तक कर्नाटक की जनता की हमने सेवा की है, अब मैं इस सत्ता के पद से अपने संन्यास लेना चाहता हूं। और उन्होंने उनकी सहमत से यह तय हुआ कि कर्नाटक की शासन की बागडोर कौन संभाल सकता है। यह फैसला हुआ कि जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हो, सीधा व्यक्ति हो, सरल व्यक्ति हो, निर्णय लेने वाला डिसाइसिव यदि कोई व्यक्ति हो तो बसवराज बोम्मई को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया जाना है। वह भाषण कर रहे थे आपके, आपने देखा हो कितनी सहजता की, कितनी सरलता की, कितनी मधुर वाणी वह बोल रहे, कहीं पर कोई शोर शराबा नहीं, कुछ है ना भाइयों। यदि यहाँ के धरती पुत्र राजनेता येदियुरप्पा जी ने यह त्याग पत्र दिया है तो मैं समझता हूं कि उसका सम्मान पूरे कर्नाटक के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि येदियुरप्पा जी आप लोगों को जानकारी होगी कि वह कर्नाटक के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका कितना बड़ा सम्मान है। येदियुरप्पा जी ने क्यों ही राजनीति से हटने की बात कही, यानी सत्ता की राजनीति से हटने की बात कही, तो उसी समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह फैसला किया, अब वहां से येदियुरप्पा जी को लाकर पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सबसे ऊंची संस्था होती है किसी राजनीतिक पार्टी की, उसका सदस्य बना दिया जाए। और बहनों भाइयों, हम लोगों ने येदियुरप्पा जी को उसका सदस्य बनाया। कर्नाटक की जो उन्होंने सेवा की उसको भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं भूल सकती। उसका हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया। आज हमारे येदियुरप्पा जी की भी यही इच्छा है, और मोदी जी की इच्छा तो आप अच्छी तरह जानते हैं। येदियुरप्पा जी की इच्छा है कि जिस प्रकार से पूरा का पूरा 5 वर्षों का समय भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, तो इस बार के चुनाव में पूरा का पूरा बहुमत ही नहीं बल्कि 2/3 बहुमत 2/3 मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए येदियुरप्पा जी ने भी कहा कि पूरी ताकत लगाकर मैं भारतीय जनता पार्टी को 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी दिलाने के लिए मैं काम करूंगा। बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। 5 साल के लिए सरकार बने, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप में से ही कुछ मुझे मेरे बारे में भी जानते होंगे, उनको भी मालूम होगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से भी आप अच्छी तरह परिचित हो गए। बहनों भाई, उनके नेतृत्व में मैं यकीन दिलाता हूं 5 वर्षों का यदि पक्का समय आपने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया तो इस दक्षिण भारत में
कर्नाटक को नंबर 1 का राज्य बनने से दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ही अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे शिमोगा में और उन्होंने एक शानदार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। हुबली के बाद ये शिमोगा का एयरपोर्ट बन जाने के कारण, इसका उद्घाटन होने के कारण एयर कनेक्टिविटी से यह पूरा का पूरा क्षेत्र जुड़ गया। और मैं कहना चाहता हूं, एयर कनेक्टिविटी नहीं, रोड कनेक्टिविटी में भी जिस तेजी के साथ हमारी सरकार में काम हुआ है बहनों भाइयों, आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस ने वह काम नहीं किया जो कि हमारी सरकार ने किया। 9 वर्षों के अंदर, विद इन 9 ईयर्स, हमारी गवर्नमेंट ने 3.5 लाख 3.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को, गांव के सड़कों को हमारी गवर्नमेंट ने, यानी मोदी जी की गवर्नमेंट ने बनाया है मेरे बहनों। जो काम कांग्रेस की सरकार 50 वर्षों में नहीं कर पाई, उस काम को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर पूरा किया। नेशनल हाईवे आज चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 9 साल के अंदर ही 80,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनवाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है मेरे भाई। कभी भी उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उनके दिल की तड़पन है, मोदी जी के दिल की तड़पन है। कर्नाटक का विकास होना चाहिए। आप ये कहेंगे कि मैं कैसे मानूं, मोदी जी के दिल की तड़पन है कि कर्नाटक का विकास होना चाहिए। तो मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी एयरपोर्ट का आपने देखा, तुमकुर में आपने देखा, कर्नाटक की धरती पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहनों भाइयों हेलीकॉप्टर तैयार करेगी, लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैयार करेगी। यह कर्नाटक की धरती पर होगा। क्या कर्नाटक के लोगों को इससे रोजगार नहीं मिलेगा? इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसा क्षेत्र जिसमें उद्योग ही खड़े किए जाएंगे। चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और साथ ही साथ हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस कर्नाटक में खड़ा करने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो भारत माता के सपूत का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। क्या बहनों भाइयों, इन तक कामों की इज्जत नहीं की जानी चाहिए? क्या इनका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह मुंबई और जो बेंगलुरु जो औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यह जो बनाया जा रहा है, बहनों भाइयों, बेलगावी के लोगों को भी बहुत बड़ा उसका लाभ मिलने जा रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। कर्नाटक में बराबर सूखे की समस्या रहती है, पानी का अभाव रहता था कि नहीं? मैं इधर पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में खेत की सिंचाई के लिए पानी का संकट पहले रहता था कि नहीं? रहता था। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है बहनों भाइयों, क्योंकि लोग कहते थे, अब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हो गया सूखा, अब निवास के निरूप और भूमि के नीलावरी, हर घर को पानी और हर खेत को पानी, हर घर में पानी जाना चाहिए, हर खेत को पानी मिलना चाहिए। यह बात हमारे प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री तो बहुत सारे लोग हुए हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कांग्रेस के नेताओं के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कथनी और करनी में, उनके वर्ड्स और डीड्स में अंतर होता है मेरे बहनों भाइयों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करके दिखाती है, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत हो। और यहां बैठे हुए हमारे पत्रकार मित्र भी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। इसके पहले के भी जो चुनाव है, हमने जो कहा था वह न किया हो तो हमारे ऊपर सवालिया निशान लगा दिए। हम जो कहेंगे वह करेंगे। विश्वास का संकट,
क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी हम भारत की राजनीति में नहीं पैदा होने देंगे मेरे बहनों। प्राण जाई पर वचन न जाई, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हम 1951 से बराबर ये कहते आ रहे हैं हमारी सरकार बन जाएगी, बहुमत मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 बनी है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की अपेक्षा विशेषाधिकार प्राप्त है, उसको हम समाप्त करेंगे। आपने देखा सरकार बनते ही संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर धारा 370 हमने समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। हम लोगों ने कहा था 3 तलाक माताओं बहनों के साथ अन्याय क्यों होना चाहिए, जुल्म क्यों होना चाहिए। लोगों ने कहा था वो मुस्लिम है, उनको छेड़िए। हिंदू भी हमारा भाई है, मुसलमान भी हमारा भाई है, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं सभी हमारे भाई। उनकी औरतें भी हमारी माता और बहनें। हम कैसे किसी को इजाजत दे सकते हैं? शादी करो और शादी करने का जब मन हो जाए तलाक 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 3 बार बोलकर उसको छोड़ दो। कांग्रेस पार्टी इस अपराध को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। 3 तलाक की प्रथा को भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। जो हमने कहा था वो करके दिखाया। 55,000 करोड़ की लागत वाले अपर भद्रा प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने मंजूरी की है बहनों भाई। चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकुरू, दामड़गिरी जैसे जिलों को स्वाभाविक रूप से इसका लाभ मिलेगा। और आपको जानकर खुशी होगी, आपके यहां अधिकांश घरों में पाइप्ड वाटर यानी नल के माध्यम से पानी तो पहुंच रहा होगा। केवल आप ही लोगों तक नहीं, हिंदुस्तान में 8 करोड़ घरों में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का काम किसी गवर्नमेंट ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया। 80 करोड़ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन। क्या बहनों भाइयों आपने सोचा था कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा, कोई ऐसी भी सरकार आएगी जो लगातार साल, 1.5 साल, 2 साल तक बिना पैसे के मुफ्त में लोगों को राशन मुहैया कराने का काम करेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने सोचा था कि वह दिन भी आएगा कि मुफ्त में हमको राशन मिलेगा? हाथ उठाकर बताइए, क्या कभी सोचा था कि नहीं सोचा? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराने का काम फूड सिक्योरिटी के तहत बहनों भाई हमारी गवर्नमेंट कर रही है। कोविड का संकट यहां आया था कि नहीं आया था? भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड का संकट था कि नहीं आता था? ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं सबको कम से कम 2 बार या 3 बार कोविड का वैक्सीन लग गया हो। ना लगा हो तो हाथ मत उठाइए, यदि वैक्सीन लग गया हो तो सारे हाथ उठाइए इनको लग गया। आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे बहनों भाई, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस बड़े बड़े मुसाफिर देश हैं, बहुत सारे जो धनवान देश माने जाते हैं, वहां भी लोगों को मुफ्त वैक्सीन नहीं लगा है। जो काम मोदी जी ने कर दिया है दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि मोदी जी ने कोविड के दौरान यदि सबका को टीका न लगवाया होता, वैक्सीनेशन न किया होता, तो भारत में 39 लाख लोग मर जाते। यह बात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है। कितना बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। मोबाइल आप लोगों के पास है कि नहीं? कहां दिखाइए, मोबाइल है कि नहीं? सबके पास है। मोबाइल के माध्यम से अब पैसे का लेन देन आप करते हैं कि नहीं? कितने लोग करते हैं? जहां दिखाइए। जानते हैं, कांग्रेस कहती थी ये गांव के लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, ये क्या मोबाइल चलाएंगे? ये मोदी जी को क्या हो गया? आज आपको जानकर आश्चर्य होगा भाई साहब, हालात बदल गए। आज स्थिति यह है कि
पिछले 9 साल में लगभग 13 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 14 लाख करोड़ मोबाइल से हमारे देश के नागरिकों ने इधर से उधर कर दिया है। मेरे भाइयों, यह करिश्मा भी यदि हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। चाहे कुछ छोटी बात है। कांग्रेस के हाई फाई नेता ये कहते थे, अरे बीजेपी वाले क्या हो गया है इनको, गांव के लोग मोबाइल चलाएंगे, यूपीआई से पैसे का इधर उधर करेंगे, ये कहा करते थे। हम लोगों ने दिखा दिया यानी डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल क्रांति इस देश में हुई है, उसका फ्लैग बियरर, उसमें प्रमुख यदि भागीदारी यदि किसी के हमारे देश के गांव में रहने वाले किसानों की है, हमारे गांव में रहने वाले गरीबों करके हम लोगों ने देखा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाद में जो हमारे नौजवान पैदा हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा आप पूछ लेना। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा दिल्ली से भेजता हूं जनता के लिए, नीचे पहुंचते पहुंचते केवल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता, शेष पैसा करप्शन की भेंट चढ़ जाता। यह लाचारी व्यक्त की, लेकिन इस चुनौती को भारत की राजनीति में किसी ने स्वीकार किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार। किसान सम्मान निधि जो आपको मिलती है, बहनों भाइयों, 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंक से चलता होगा तो आपके खाते में 100 का 100 पैसा पहुंचता होगा, 1 पैसा भी इधर उधर नहीं होगा। और बहनों भाइयों, हमारी बात सच हो, एक बार हाथ उठाकर ताली बजा दीजिएगा तो मैं मान लूं कि हमारी बात सच है। हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए तो मैं मानूंगा। मीडिया के मित्रों, यह रिस्पॉन्स जनता का देखिए, यह करिश्माई काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। केवल भाषण देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में परिवर्तन लाकर ही भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है, और कोई दूसरा चारा नहीं। राजीव गांधी जी ने कहा था, भ्रष्टाचार लाइलाज, भ्रष्टाचार लाइलाज है, भ्रष्टाचार का इलाज हो ही नहीं। हमारे मोदी जी ने सीना ठोक कर कहा है, मेरे साथियों, भ्रष्टाचार लाइलाज नहीं है, मेरे पास भ्रष्टाचार का पक्का इलाज है, पक्का इलाज है, और वह इलाज कर देगा। लोग कहते हैं, भारत, कांग्रेस के लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। बहनों भाइयों, कोविड के कारण दुनिया के एक देश का नाम कोई मां का लाल हमको बता दे जहां महंगाई में बढ़ी। कांग्रेस के लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सारी दुनिया में सबसे कम महंगाई यदि कहीं बढ़ी है तो केवल भारत में बढ़ी है। मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया के देशों में ज्यादा महंगाई बढ़ी है। कोई ऐसा संकट यदि देश की जनता के सामने पैदा होगा, उस संकट का भी निवारण हम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई है आपको जानकर खुशी होगी। पहले जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो हमारे देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था दुनिया के सारे देशों को मिलाकर 10वें 11वें स्थान पर थी, 10th 11th पोजीशन पर। आज सीना ठोक कर आप कहो कि हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ी हो गई है। दुनिया की 5 कंट्री क्या छोटी पड़ती है? अभी मॉर्गन स्टैनले, एक बहुत बड़ी शख्सियत, इन लोगों ने कहा है, उसके लोगों ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027, 2027, 28 यानी 4-5 साल में ही अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी इकोनॉमी इस दुनिया की किसी की होने जा रही है तो भारत की होने जा रही है। बहनों भाइयों, भारत की होने। अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की इज्जत बढ़ी थी। पहले भारत के लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे तो उनकी बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं सुनते थे, एक कान से सुनते थे, दूसरे से निकाल देते। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो मेरे बहन भाइयों, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। क्या आपको गर्व की अनुभूति नहीं होती है कि हमारे देश की इज्जत, हमारे देश की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में बढ़ी है? आतंकवाद का भी सफाया करने में काफी हद तक हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पीएफआई पर भी हम लोगों ने बैन लगा दिया, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया। जो दहशत पैदा करेगा, जो आतंक पैदा करेगा, उसको हमारी सरकार किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। अब कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस के एक नौजवान नेता हैं, जानते हैं? जानते हैं? जानते नहीं? और उनकी लॉन्चिंग की जा रही है, लॉन्चिंग की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा बनी। भाई भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जो दो खंडों में टूटना था वो तो 15 अगस्त 47 के पहले टूट गया दो खंडों में। मैं सोचा कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं राहुल जी, शायद वह कराची जाए, शायद लाहौर जाए, नहीं गए। किसको जोड़ने का काम कर रहे हैं? पूरा भारत एक है, एकजुट है। केवल जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती है मेरे बहनों। वही नेता कामयाब हो सकता है जो जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करता है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करता है, वही कामयाब होता है। और यह करने वाली यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। ये लोग नारा लगाते हैं कांग्रेस के लोग, मोदी जी तेरी कब्र खुलेगी। क्या बहने भाइयों, आपके प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसा कहता था, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता? किसी का विरोध करना है, विरोध करो, उसको मरने की, उसका कब्र खोदने की बात करो। और मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, वह मोदी जी की कब्र नहीं खोद रहे हैं, यह कहकर वो अपनी कब्र खोद रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, सुन लो मेरे कांग्रेस के दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जितना भी कीचड़ उठा लोगे, हमारा कमल उतना ही खिलता चला जाएगा, उतना ही कमल खिलता चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं मेरे बहनों। और आप तो आप समझ लीजिए, पहले तक 2G का जमाना था, 5G का आ गया। 6 लाख किलोमीटर, वाह रे मोदी जी कमाल कर दिया। 6 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछवा दिया भारत जनता। क्या करिश्माई काम किया। बहनों भाइयों, संयुक्त राष्ट्र संघ के नेता भी अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और अभी सबसे बड़ा एक सौदा हुआ है, 470 जहाज खरीदने का ऑर्डर बोइंग की, एयरबस को दिया गया है। 470 जहाज भारत में आएगी। एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर। कंपनी जो आप कहेंगे उसे भारत का लाभ क्या होगा? भारत के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसी बेंगलुरु में बोइंग विमान के, बोइंग प्लेन के दरवाजे, पैनल और सॉफ्टवेयर इसी बेंगलुरु के ही नौजवान बनाने का काम करते हैं। बहनों भाइयों, रोजगार बढ़ेगा, इसलिए मैं इसकी चर्चा करना। हमारे प्रहलाद जोशी जी ने बताया, डिफेंस, रक्षा, मैं रक्षा मंत्री। पहले क्या होता? गोले, बारूद, बंदूक, तोप, टैंक, यह दुनिया के दूसरे देशों से मंगाई है। भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, अब हम दुनिया के दूसरे देशों से अब टैंक, तोप, मिसाइल, बम अब नहीं खरीदेंगे, बल्कि इसी भारत की धरती पर हम ये सारी चीजें बनाएंगे। और केवल भारत के लिए नहीं बनाएंगे, हम सारी दुनिया के लिए बनाएंगे। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया,
भारत में बना और मेड फॉर द वर्ल्ड, सारी दुनिया के लिए लोग हमसे खरीदे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे लोगों को रोजगार मिले। अब तुमकुरू में जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, हमारे बसवराजी बंबई के बहनों भाइयों, ये चल जो हेलीकॉप्टर बनाने का जो फैसला किया है कोई छोटी बात नहीं। क्या हो गया है कांग्रेस के लोग? सेना के शौर्य पराक्रम पर, सेना के बहादुरी के ऊपर यह सवालिया निशान लगाते हैं। बहनों भाइयों, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, हमें अपने सेना के जवानों पर गर्व है, सेना के जवानों पर गर्व है। और सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है, यदि मैं खुलकर बता दूं मेरे बहनों भाइयों, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा बहनों भाइयों, ऐसा करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों उनके ऊपर भी ये सवालिया निशान लगाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं बहनों भाई, आपका समर्थन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और केवल हमको मेजॉरिटी, बहुमत नहीं चाहिए, हमको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। बसवराजी बंबई कैसे व्यक्ति हैं, धीरे धीरे आप लोगों को सबको पता लग गया है। और यदि आपका समर्थन है तो मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ ऐसे उठाकर आप सभी आशीर्वाद दीजिए, और आप सभी लोग मंच से खड़े हो जाइए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। एक बार हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ಈ ವೇಳೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಸುನಾಮಿ ಎದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಶಕ್ತಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ, ಮೋಸದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದ ಅವರು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಂಶಾವಳಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತೆಸೆಯಬೇಕಿದ್ದು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಲು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು, ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 60 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದೂರ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ದಿಟ್ಟ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮೋದಿಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ, ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ದಶಕಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಂಶಾವಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜನಮತ ಕೊಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪರ, ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನಡೆದಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಇದು ಕಮಲ ಅರಳಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ನಾಡಿಗೆ ಇದು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾಳೆ 12 ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, 4 ಯಾತ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ 4 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲೆ ಇದೆ. ಮತದಾರರು ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೇವಲ ಭರವಸೆಗಳ ಸರ್ದಾರರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಕೊಡಲು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ವೇಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.